कोई ये ना कहे कि मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी ऑब्लिगेशंस क्या है इस रिलेशनशिप में, मुझे अपने हिसाब से जीना है। फेमिनिज्म मूवमेंट जो चलता आया है कि लेडीज़ कहती हैं कि हमको ऑब्लिगेशंस में नहीं पड़ना, हमें किसी के साथ में टाई अप नहीं होना, हमें अपनी फ्रीडम चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उस रीज़न से भी ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। तो एल्बर्टा में जब मैंने कहा कि यूजुअली 3 इयर्स जब हो जाते हैं तो आपके सेम राइट्स होते हैं जैसे मैरिड कपल के होते हैं। ठीक है। और प्लस अगर बच्चा हो जाता है तो 3 ईयर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ CKYR 106.7 ਰੈਡ FM ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵਾਊਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 2 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਐਡਲਟ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 2 ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਲੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ 2 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਅ, ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਘਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਟੀਮਡ ਫਰਮ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਤੋਂ ਲਾਇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੇਘਾ, ਵੈਲਕਮ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। गुड आफ्टरनून गुरप्रीत, गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी मेघा, कॉमन लॉ पार्टनर की जब हम बात करते हैं, इज इट द सेम एज लिव इन रिलेशनशिप? क्या है ये? दैट्स करेक्ट। जो कॉमन लॉ रिलेशनशिप होता है उसको बाकी भी नेम्स दिए जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, कॉन्जुगल पार्टनर्स बोलते हैं, कोहैबिटेशन पार्टनर्स भी बोलते हैं। ये सब जो है सेम ही टर्म्स होती हैं। और लीगली जो उसको बोलते हैं, लीगल टर्म होती है जिसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगी, उसको बोलते हैं एडल्ट इंटरडिपेंडेंट पार्टनर्स। और वो तब माना जाता है जब अगर 2 लोग अपने एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं, एल्बर्टा में 3 साल तक, या उस रिलेशनशिप में कोई बच्चा होता है, उसको बोलते हैं। और एक थर्ड रीज़न भी हो सकता है जिसके अंदर पार्टीज़ ने एडल्ट इंटर रिलेशनशिप पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। यस। अच्छा, एग्रीमेंट भी साइन करते हैं? जी, अगर तीनों में से एक भी कोई रीज़न होता है तो उसको एडल्ट इंटरडिपेंडेंट पार्टनर माना जाता है एल्बर्टा में। ओके। 3 साल इकट्ठे रहना, या बेबी है या आपने एग्रीमेंट किया है? जी। ये आप प्रूव कैसे करेंगे कि हम रह रहे हैं? एड्रेस सेम प्रूव करते हैं, कैसा है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के ओवरऑल डिसाइड किया जाता है कि वो रिलेशनशिप परमानेंट था कि नहीं था। एग्जाम्पल है कि बैंक अकाउंट्स एक हो जाते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, या बच्चे हो जाते हैं, और बाहर जाके लोगों को क्या कहते हैं कि हम, कुछ लोग तो वैसे ही बोल देते हैं कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के डिसाइड होता है कि ये कॉमन लॉ पार्टनर्स हैं कि नहीं है। ओके। यस।
कुछ लोग तो कहते हैं कि हम स्पाउस हैं, हम कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और जो ऐसे हैं वो अपने आप को पार्टनर भी बोल देते हैं, वी आर जस्ट कॉमन लॉ पार्टनर, वी लिविंग इन। बिल्कुल। ओके, अगर आप एज अ लॉयर एंड एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप कम्युनिटी में मूव अराउंड करती हैं, क्या लगता है आपको ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है लिव इन रिलेशनशिप कॉमन लॉ पार्टनर, और उसकी वजह क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती जा रही है। आज से कुछ साल पहले, मतलब अगर ट्रेंड देखा जाए स्टैट्स कनाडा के अकॉर्डिंग 1981 में खाली 6.3% टोटल कपल्स कनाडा में माने जाते थे कॉमन लॉ में, लेकिन इस टाइम पर 1 in 4 कपल्स आर इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप। अच्छा, यस, 1 in 4, हाँ जी। दैट्स अ बिग नंबर ना। क्या लगता है आपको कि सामाजिक तब्दीली आ रही है? ये ट्रेंड एक्चुअली कंटिन्यू होता रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो बात की जाए, बहुत ज़्यादा रीज़न ये, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल लोग कहते हैं कि शादी करने से पहले हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि खासकर यंग जनरेशन जो है वो आजकल कहती है कि हमें पता करना है कि उसकी हैबिट्स क्या है दूसरे इंसान की, हमारी उनसे कंपैटिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा उनके पास बैड हैबिट्स कोई है कि नहीं है, जैसे कि बाद में पता चले कि कोई ड्रग्स लेता है या गैम्बलिंग है या अल्कोहलिक है, ये चीज़ें आपको पहले नहीं पता चलती। तो लोग कहते हैं कि पहले हम ट्राई करके देखते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करता है कि नहीं, फिर बाद में शादी के बारे में सोचेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर लोग इसलिए करते हैं। दूसरा रीज़न है लोग डिवोर्स से बहुत डरते हैं। यस, जैसे आजकल कनाडा के स्टैट्स के अकॉर्डिंग ये है कि 40% ऑफ जो मैरिजेस होती हैं दे एंड अप इन डिवोर्स। ये एक ट्रेंड है। तो लोग कहते हैं कि उन्होंने भले ही खुद उनका डिवोर्स ना हुआ, उन्होंने किसी का देखा है फैमिली मेम्बर का कि उनका डिवोर्स हुआ है, तो वो देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इमोशनल इम्प्लिकेशंस होती हैं, फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें शायद अभी नहीं करना या करना ही नहीं है। और कईयों का तो खुद ही डिवोर्स हुआ होता है। यस, तो वो कहते हैं कि एक बार कर लिया, दोबारा कैसे करें। तो वो भी एक रीज़न होता है। कुछ और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि आज से कुछ साल पहले तक एक थ्योरी होती थी कि कलेक्टिविज्म की, कि जैसे कि लोग डरते थे, सोसाइटी के नॉर्म से डरते थे कि नहीं हमें शादी ही करनी है। लोग कहते थे कि सोसाइटी मतलब ओवरऑल जो कलेक्टिव जो था वो यही था नॉर्म कि आपने शादी करनी है, उसी में ही रहेंगे। लेकिन अब जो है लोग कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म हो गए, जिसको कहते हैं कि मैं अपने लिए, मेरे लिए जो ठीक है वो बेटर है। तो जो लोग कहते हैं कि घर वाले तो कहते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग शादी करें। शादी जो होती है हमारे कल्चर में कहते हैं कि 2 फैमिलीज की मिलन होता है, लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से जीना है। मेरे को कोई ये ना कहे कि मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी ऑब्लिगेशंस क्या है इस रिलेशनशिप में, मुझे अपने हिसाब से जीना है। तो ये भी एक रीज़न होता है। और यस मेघा, दिस इज अ बिग कल्चरल शिफ्ट जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में। या एंड इट्स नॉट जस्ट कि एक पर्टिकुलर एथनिसिटी या एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग कनाडा में लिव इन या कॉमन लॉ पार्टनर के तौर पर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बल्कि डाइवर्स कम्युनिटीज़ में से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये चीज़ पहले हमारे इंडिया में भी आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। सबसे पहले तो ये रीज़न हुआ कि ग्लोबलिज्म बहुत बढ़ गई है, तो जो यहाँ पे आइडियाज़ होते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं टेक्नोलॉजी से। ये टीवी के शोज़ होते हैं, वेब सीरीज़ होती हैं, उनसे लोग देखते हैं, तो वो उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या हमारे लिए ठीक है ये। और एक और भी रीज़न ये है कि अब क्योंकि लॉ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज जब आपको AIP माना जाता है, एडल्ट इंटरडिपेंडेंट पार्टनर माना जाता है 3 साल के बाद, या आपने जैसे मैंने कहा कि बच्चे जब हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है फ़र्क क्या है उसके अंदर। तो लॉज तो हमें भी एक्सेप्ट उसी तरीके से ही देख रहा है जैसे कि एक मैरिड कपल को देखता है। तो वो उसके कारण से ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और जो लोग आजकल ये फेमिनिज्म मूवमेंट जो चलता आया है कि लेडीज़ कहती हैं कि हमको ऑब्लिगेशंस में नहीं पड़ना, हमें किसी के साथ में टाई अप नहीं होना, हमें अपनी फ्रीडम चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उस रीज़न से भी ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है।
एज लॉन्ग एज बोथ द पार्टीज एग्री, उन्हें लगता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, आंसरेबल मुझे हर बार हर चीज़ के लिए नहीं होना पड़ेगा, या मुझे कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैं लिव इन में रह लूँ, अगर बनी तो बनी, नहीं तो चलो अपनी जगह, तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह। कुछ लोगों के रीज़न ये भी होते जी। हैं, बाकी कई लोगों के और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि किसी का डिवोर्स नहीं हुआ, वो वेट कर रहे हैं प्रोसेस में, लीगली प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो कहते हैं कि अभी कितनी देर तक वेट करेंगे, तो कॉमन लॉ कर लेते हैं। तो कुछ रीजंस जेन्युइन भी होते हैं, ठीक, और कई लोग कहते हैं कि ये बस एक इंस्टेंट है कि अभी रिलेशनशिप किया, नहीं चला, ओके आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, पर कई लोगों के पास जेन्युइन रीजंस भी होते हैं जिस कारण से वो कॉमन लॉ कर लेते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਣੀ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫਟਰਨੂਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਘਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰੋਮ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल। जी मेघा, कहाँ कौन सी और एरियाज हम लोग करते हैं फैमिली लॉ में, एम्प्लॉयमेंट लॉ, सिविल लिटिगेशन, कॉर्पोरेट लॉ, रियल एस्टेट, विल्स, क्रिमिनल लॉ, और लाइक इट्स जस्ट सारी जितने भी एरियाज हैं लॉ के कवर्ड होते हैं। इमिग्रेशन लॉ भी करते हैं। ओके गुड, क्योंकि आज हम लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लीगल आस्पेक्ट, उसमें आपके क्या क्या हक हैं, क्या क्या राइट्स हैं आपके पास अवेलेबल। अब बात करना चाहूँगी मैं कि आप बात जो शुरू की थी हमने ट्रेंड्स को लेकर, कि नंबर्स जो स्टैट्स कैनेडा ने भी सामने दिए हैं, क्योंकि जब भी वो स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करते हैं, आपके पास घर पर फॉर्म आता है, वो भरना है या ऑनलाइन आप भरते हैं, उसमें वो पूछते हैं, तो वो ट्रेंड्स क्या शो कर रहे हैं हमारे कनाडा के नंबर्स। जैसे कि मैंने मेंशन किया था अभी, एक तो कॉमन लॉ रिलेशनशिप्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1981 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग 6.3% खाली कपल्स जो थे वो कॉमन लॉ में होते थे, बाकी सब मैरिड रिलेशनशिप में थे। अब 25% है 2021 के अकॉर्डिंग, कि 25% जो कपल्स हैं वो कॉमन लॉ रिलेशनशिप में। इंटरेस्टिंगली जो स्टैट्स हैं, एक सबसे बड़ा स्टैट ये है कि जो लोग अभी कॉमन लॉ रिलेशनशिप में हैं, शायद 50% जो हैं वो हैं जिनमें एक कपल का पहले डिवोर्स हो चुका है। अच्छा। दूसरा ट्रेंड ये है कि जो एज ग्रुप है 20 years to 24 years, उसके अंदर जो है 79% कपल्स जो हैं कॉमन लॉ रिलेशनशिप में हैं। वाओ, यस 79% बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 and 24 जो डिक्लेयर करते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं। ओके। और एक और ट्रेंड है जो एज ग्रुप है 50+, उसमें आज से बहुत साल, मतलब कुछ साल पहले तक इतना कॉमन नहीं था कि कॉमन लॉ में रिलेशनशिप में लोग होते थे, लेकिन अब एज ग्रुप ऑफ 50 to 69 में 16% ऑफ कपल्स जो हैं वो कॉमन लॉ रिलेशनशिप में हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। जी। ओके, वी हैव बलविंदर बराड़ जी विद अस, हमारे साथ फोन लाइन पे। डॉक्टर बराड़, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। हेलो जी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਲ ਵੇਟ ਫॉर ਅਨਦਰ ਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 4032861067 4032861067 ਤੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨशिप या कंज्यूगल रिलेशनशिप ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बच्चे अगर हो जाएं इस रिलेशनशिप से, तो फिर उनके हक क्या हैं, कैसे फिर पेरेंट्स भी डिसाइड करते हैं जिम्मेदारी कौन उठाएगा। बच्चों के जब राइट्स की बात होती है उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कि अगर किसी की शादी से बच्चा हुआ है कि कॉमन लॉ रिलेशनशिप से हुआ है। कनाडा में उनको इक्वली माना जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो उनके जो बच्चों का राइट होता है चाइल्ड सपोर्ट का, जैसे कि रिलेशनशिप खत्म होने पे, वो सेम होता है। इवन इनहेरिटेंस राइट्स भी जो बच्चों के होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो बच्चों के केस में तो बराबर ही है सब कुछ। व्हाट इफ द पेरेंट्स डिसाइड कि अभी बच्चे तो हो गए पर हमें इकट्ठे नहीं रहना है, तो फिर उनका भी वैसे ही जैसे डिवोर्स होता है फॉर्मल, बच्चे की एलिमनी और जिम्मेदारी कौन उठाएगा, खर्चा कौन देगा, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। कॉमन लॉ रिलेशनशिप अगर ख़त्म होता है
तो उसमें पार्टीज जो होती हैं वो डिसाइड कर सकते हैं खुद कि हमने क्या एक दूसरे के साथ में जैसे मैरिज में होता है कि हमने सेपरेशन एग्रीमेंट साइन करना है और हम उस पर डिसाइड कर लेते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज़ कैसे डिवाइड करनी है, एसेट्स वगैरह कैसे डिवाइड करने हैं। उसके साथ में एक और बड़ी बात होती है कि अगर उन्होंने पहले कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो वो भी उसको भी बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो यूजली तो राइट्स तो होते हैं वो सेम ही होते हैं आफ्टर 3 years ऑफ मैरिज और बच्चे के बाद में, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपने पहले कोई एग्रीमेंट साइन किया है कि नहीं किया और उसके बाद में क्या हुआ है। कि कभी कभी एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम अपने एसेट्स ऐसे डिवाइड करेंगे और प्रिज्यूम करते हैं कि बच्चे नहीं होंगे, लेकिन अगर बच्चे हो गए तो अब आप क्या करेंगे। तो ये चीज़ों पे डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जी सो मेघा, एक्सेप्ट करना अपनी कम्युनिटी और अपने कल्चर में एक तो थोड़ा मुश्किल भी है और वहीं कल्चरल शॉक भी लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी जो आपने इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर की बात की थी रादर देन कलेक्टिविज्म, उस तरफ भी इशारा कर रहा है ये कॉमन लॉ पार्टनर रिलेशनशिप होना। बॉबी दी गल सुन दिया। हेलो बॉबी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पे आप कॉमन लॉ पार्टनर जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2 कर रहे हैं, क्या कॉमन लॉ पार्टनर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे चंद एक मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने 2 बीवियां रखी हुई है, सेकंड वाइफ को उन्होंने कॉमन लॉ पार्टनर डिक्लेयर किया है। प्लीज इस पर भी रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। लीगली जो है आपका एक ही इंसान के साथ में रिलेशनशिप हो सकता है, या आप उसके साथ मैरिड है ये, या आप एक कॉमन लाइक जो अल्बर्टा में बोलते हैं एडल्ट इंटरडिपेंडेंट पार्टनर है आप। और उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि एक एडल्ट इंटरडिपेंडेंट पार्टनर की रिक्वायरमेंट है कि आप किसी और के साथ में मैरिड नहीं है और ना ही आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। तो जो पहले होता है उसके ही राइट्स बनते हैं, दूसरे के कोई राइट्स नहीं होते। ओके बच्चों को छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल सुनिश्चित है। अच्छा है लॉ के जरिए। और हमारे पास लिसनर उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भेजा है, इफ वन इज मैरिड बैक इन कंट्री एंड लिविंग हियर एज लिव इन, व्हाट आर द इफेक्ट्स लीगली एंड इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं? जैसे बैक होम कंट्री में उन्होंने मैरिज करवा ली, यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे किसी पार्टनर को अपने साथ इकट्ठे रह रहे हैं कॉमन लॉ पार्टनर के तौर पे। जैसे मैंने कहा कि जो जिसका पहले रिलेशनशिप है उसके राइट्स होते हैं, दूसरे के नहीं होते। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि अगर किसी को नहीं पता तो उसमें एक दूसरे लॉज होते हैं जिससे आप अपना क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट। उनको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, रिजल्टिंग ट्रस्ट, अनजस्ट इनरिचमेंट। तो अगर कोई चाहे तो हम उनको बता सकते हैं कि उस किस तरीके से वो लीगली अपना हक ले सकते हैं। बट बाय लॉ आपका जिसने भी पहले शादी की या रिलेशनशिप में है उनका पहले राइट माना जाता है। जी गलबात ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ, ਉਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਫੇਅਰਸ ਘਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਮਾਨਸਿਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਕਪਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਘਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਐਡਲਟ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AIP हाँ जी, इनको समझाओ। हाँ जी, तो हर प्रोविंस में उसको अलग नाम दिया जाता है। एल्बर्टा में एडल्ट इंटरडिपेंडेंट पार्टनर माना जाता है। तो एल्बर्टा में जब मैंने कहा कि यूजली 3 years जब हो जाते हैं तो आपके सेम राइट्स होते हैं जैसे मैरिड कपल के होते हैं। ठीक है। और प्लस अगर बच्चा हो जाता है तो 3 year की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, या अगर आपको एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है। एल्बर्टा में तो 3 years है और बाकी प्रोविंसेस में वेरी करता है। कुछ प्रोविंसेस में 2 years है, जैसे कि BC में 2 years है, ऑन्टेरियो में 2 years है, हर जगह पे डिफरेंट है। कुछ प्रोविंसेस में तो आपको तब तक नहीं माना जाता जब तक आप जाके डिक्लेयर नहीं करते लीगली बाय डिफ़ॉल्ट। और तो ये डिपेंड करता है। और मैं एक और बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, इनकम टैक्स पर्पसेस के अकॉर्डिंग जब आप किसी के साथ में 1 साल तक रहते हैं तो आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मेरे कॉमन लॉ पार्टनर हैं। जी
ਓਕੇ Yes. ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਹੋਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो अब गवर्न करता है इमिग्रेशन लोगों की यहाँ पे अगर आप 1 साल से किसी के साथ में कॉमन और रिलेशनशिप में थे ठीक है 1 साल में उनके साथ में रह रहे थे मैरिज के बाहर तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं अगर अप्लाई करते हैं तो वो उसमें इमिग्रेशन को प्रूव भी करना पड़ता है कि ये जेन्युइन रिलेशनशिप है ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੀਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ जी ਸੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ इमिग्रेशन लॉ के अंदर जैसे मैरिज में होता है कि उसमें प्रूव करना पड़ता है रिलेशनशिप जेन्युइन है मैं एक एग्जांपल देती हूँ जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोई गे कपल है या लेस्बियन कपल है तो इंडिया में तो इस चीज़ को इतना माना नहीं जाता तो इमिग्रेशन जो है यहाँ पे उनको ये पता है कि इंडिया में तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके अंदर वो प्रूव कर देते हैं कि किस तरीके से कि फ़ोन कॉल्स रेगुलरली आ रही हैं गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं आप अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरे पार्टनर है तो उस तरीके से वो प्रूव हो जाती हैं चीज़ें उस पर केस प्रॉपर आपको दिखाना मतलब उस तरीके से और मैं ये बात करना चाहती हूँ अगर किसी को ये कॉमन और रिलेशनशिप दिखाकर इंडिया से या कहीं से अपना इमिग्रेशन कराना है तो प्लीज़ किसी लॉयर से बात करिएगा खुद मत करना शुरू कर दीजिएगा ये मेरा पहले से एक मेरी एक एडवाइस है क्योंकि ये आप इसमें आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ता है कुछ डिसएडवांटेजेस भी आप कंसिडर करती हैं कॉमन लॉ रिलेशनशिप की हाँ बिल्कुल हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जैसे मैरिजेस के होते हैं लोग कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे मिसेस बरार ने कहा था कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग भाग रहे हैं जो भी इसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं कॉन्स ये है कि लोग हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं कभी कभी कि उनको लगता है कि मैंने इसके साथ कॉमन लॉ कर लिया है लेकिन कल को ये मुझे छोड़ के ना चला जाए चली ना जाए दे फील कि फाइनेंशियली नहीं सिक्योर फील करते कई बार और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कभी कभी वो लोग सोचते हैं कि ये ट्रांजिशन ना हो कि ये ट्रांजिशन के लिए इसने मुझे यूज़ का वर्ड बहुत यूज़ करते हैं कि मेरे को यूज़ किया तुमने यूज़ किया और तुम उसके बाद में तुमने कहीं और शादी कर ली कई बार ऐसे भी होता है हमारे कम्युनिटीज़ में कि कॉमन लॉ किसी के साथ में किया है बाद में शादी हमने अपने घर वालों के हिसाब से कर ली है एक वो भी बात गलत होती है लेकिन होता है कुछ लोगों के केस में ये नहीं होता कोई और रीजंस होते हैं फैमिली का प्रेशर बहुत होता है ये एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि फैमिली प्रेशराइज करती रहती है तुमने कॉमन लॉ कर दिया लोग बार बातें कर रहे हैं हमारे बारे में बात कर रहे हैं तुम शादी कब कर रहे हो तो वो शादी वो कॉमन लॉ तो इसलिए करते हैं कि वो अभी रेडी नहीं है शादी के लिए लेकिन घर वाले फैमिली वाले प्रेशराइज करते हैं और हमारे कल्चर में जनरली जो बच्चे होते हैं इन रिलेशनशिप से तो उनको भी एक्सेप्ट करने में फैमिलीज़ को प्रॉब्लम होती है और सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है एक्सेप्ट करने में और बाकी भी इसके काफ़ी सारे नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हैं कई बार चीटिंग बहुत होती है इन रिलेशनशिप्स के अंदर क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है और कुछ और भी रीजंस होते हैं जिसके कारण से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो जाती हैं इनकी जैसे कि कभी भी जैसे एक मैरिज होती है उसमें आप डिवोर्स करते हैं आपको लीगली प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है कॉमन लॉ में अगर आपकी लीगल डेफिनेशन नहीं मीट होती तो आप कभी भी किसी के साथ में अलग हो सकते हैं तो उसमें जो होता है दोनों लड़का लड़की दोनों के साथ में कई बार ऐसा होता है हम लोग भी देखते हैं कि डिप्रेशन उनमें आ जाता है किसी के जाने से तो ये बड़े सारे रीजंस है जिनसे बहुत होता है तो प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों चीज़ों के हैं ਓਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੈੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਹਣੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਘਾ ਇਹ ਬਾਤ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਾਮਨ ਲਾਅ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ आ। बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़ा रीज़न है। और एक जो ट्रेंड हमने जनरली देखा है, शादी से पहले बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि आजकल इवन हमारे कल्चर में भी होने लग गया है कि वो कहते हैं इकट्ठे रह के देखते हैं अगर कंपैटिबल है कि नहीं है। और कई मैंने ये बात सुनी है कि मैंने देखना है कि ये जो लड़का है या लड़की जिससे मैं रिलेशनशिप में हूँ, ये मेरे और अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस कर सकता है कि कर नहीं सकती है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। हमारे कल्चर में ये बहुत है कि फैमिली जो होती है, बच्चे देखते हैं कि अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि लड़ाई हो रही है माँ बाप की, तो वो उसमें बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ भी है ऐसे जिए कि जहाँ पे लड़ाई होती रहती है हर वक्त। तो वो कहते हैं कि हमको देखना है कि ये सब फैक्टर्स हैं कि इस तरीके से कि हमारी एक दूसरे से बनती है कि नहीं बनती। अच्छा। फिर अगर ठीक लगा तो बाद में उसको रिलेशनशिप को प्रॉपर एक फॉर्मल तरीके से शादी कर सकते हैं। ਅੱਛਾ, हाँ जी। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੇਘਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਵ ਇਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਮੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ? कोई लीगली उसको मना नहीं है हाँ। कि अगर आप चाहें तो आप कॉमन लॉ में अपने लड़के के घर वालों के साथ भी रह सकते हैं, लड़की के घर वालों के साथ, ऐसे कोई उसमें कोई लीगली कोई मना नहीं है। हाँ। पर यूजली जो होता है लोग कॉमन लॉ तभी करते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने हिसाब से इकट्ठे रह के देखना है। अपना लग रहा है। हाँ। अच्छा। और उसमें ये होता है कि वो जैसे शादी होती है तो उसके अंदर दो कहते हैं हमारे कल्चर में कि ये दो परिवारों का मिलन है, और घर वाले हर बात में मतलब ओपिनियन होती है और बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें ओपिनियन नहीं चाहिए। हम जो इंडिविजुअलिज्म का जो कंसेप्ट है कि वो हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हमें अपने हिसाब से देखने दो, हमें अपना अलग रह के देखना चाहते हैं कि कैसा है, हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है। ਸਹੀ ਹੈ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ठीक है, तो कोहैबिटेशन एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने किसी का रिलेशनशिप किया और आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में कैसे आप लोग जैसे फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेंगे, जैसे कि अगर किसी ने इकट्ठे घर ले लिया तो ये है कि आधे पैसे आप दो आधे मैं दूंगी, और उसके अलावा तो फाइनेंशियली जो होते हैं उसके अंदर वो होता है कि आपका अरेंजमेंट कैसा रहेगा ड्यूरिंग रिलेशनशिप, कि अगर आपने प्रॉपर्टी जो है आपकी पुरानी है तो वो किसके राइट होंगे। तो आप कोशिश करते हैं अगर किसी को भी प्रोटेक्ट करनी है प्रॉपर्टी, जैसे किसी की कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या किसी की कोई प्रॉपर्टी रिलेशनशिप से पहले थी, तो वो उसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइबिलिटीज़ का भी ऐसे ही होता है कि अगर किसी की कोई डेट्स हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे पे वो उसका भार ना पड़ जाए, तो वो इस कारण से कोहैबिटेशन एग्रीमेंट कर लेते हैं। और उसके अलावा वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि अगर रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो उसके अंदर क्या क्या कैसे हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करेंगे और लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करेंगे, और अगर इकट्ठे को एक्वायर किए प्रॉपर्टी रिलेशनशिप में तो उसको कैसे डील करना है। वैसे ही स्पाउसल सपोर्ट को डील करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी की इनकम ज़्यादा है किसी की कम है और उनको लगता है कि बाद में कोई स्पाउसल सपोर्ट का क्लेम ना आ जाए, तो उस कारण से भी वो डील करने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड सपोर्ट तो यूसी डील नहीं करते क्योंकि वो ऑटोमेटिक राइट होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर ही नहीं सकते उससे। तो वो सारा कुछ जो होती है चीज़ें जो होती है कोहैबिटेशन एग्रीमेंट में डील की जाती हैं, उसको सेट किया जाता है कि काल को बाद में मुश्किल ना हो कि रिलेशनशिप के बाद में। और मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, ये जो रिसेंटली मैंने देखा है कि कोहैबिटेशन एग्रीमेंट खुद ही पेपर पे बना के लिख देते हैं। अच्छा। ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, वो वैलिड नहीं है। अच्छा। लीगली आपको जो है एक लॉयर से इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो ही आपका कोहैबिटेशन एग्रीमेंट वैलिड होता है बाय लॉ।
ओके ये मैंने बाद में देखा है कि बाद में लड़ाई हो जाती है और बाद में वो कहते हैं कि ये मैंने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू होती है पर वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਾਈਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਘਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਫ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन करना चाहिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आप फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। और ये ज़रूरी है कि आप पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस और आपकी नीड्स पहले ही बता दें कि आपकी क्या ज़रूरत है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर किसी को लगता है कि उनको अपनी प्रॉपर्टी या अपनी लाइबिलिटी से मतलब प्रोटेक्शन चाहिए तो उस हिसाब से उनको लॉयर को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो एक एग्रीमेंट बना सकें। लाइफ का कुछ पता नहीं होता मेघा जी, सो किसी की बारी कब आ जानी है, इट्स हार्ड रियलिटी। व्हाट इफ अगर आप कॉमन लॉ रिलेशनशिप में हैं और आपका एक पार्टनर जो है वो गुजर जाते हैं तो फिर क्या? अगर किसी ने एक एग्रीमेंट नहीं साइन किया, कोहैबिटेशन एग्रीमेंट या कॉमन लॉ एग्रीमेंट नहीं साइन किया, तो आपके जो राइट्स होते हैं वो विल्स एंड सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो इस्टेट में से, जिस बंदे की डेथ हुई है उसके इस्टेट में से अपने स्पाउसल सपोर्ट का हक मांग सकते हैं और प्रॉपर्टी में राइट्स भी मांग सकते हैं। तो उसके अंदर अगर एग्रीमेंट साइन किया है तो वो गवर्न करता है कि आपको आपकी क्या राइट्स हैं किसी के पार्टनर के डेथ के बाद में। और अगर नहीं किया तो फिर दूसरे तरीके से कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल, जैसे मैरिज होती है वैसे ही कॉमन लॉ रिलेशनशिप के पार्टनर को ही ट्रीट किया जाता है विल्स एंड सक्सेशन एक्ट के अंदर। योर फाइनल मैसेज मेघा जी? फाइनल मैसेज मेरा ये है कि वन साइज डजंट फिट ऑल। ये अगर किसी के लिए शादी जैसे सबके लिए ठीक नहीं होती, कॉमन लॉ रिलेशनशिप भी सबके लिए ठीक नहीं होता। ये हर किसी के अपने ऊपर होता है, सब कपल्स के ऊपर होता है कि उनके लिए क्या ठीक है। तो मेरी तो एक ही बात है अपनी कम्युनिटी के लिए, मतलब एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को खुद देखने का एडवाइस किया जाए कि वो खुद अपने लिए डिसाइड करें कि क्या उनके लिए ठीक है। और तो ये अपने आप देखना पड़ता है कि अपने फैमिली के हिसाब से कि क्या ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें कॉमन लॉ करना है, लेकिन घर वाले जो होते हैं उनको भी आप दुख दे के भी कैसे आप खुश रह सकते हैं। तो ये हर किसी को अपने आप डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए क्या ठीक है, और कपल्स खुद डिसाइड करें कि उनको अपनी फ्यूचर लाइफ कैसे स्ट्रक्चर करनी है, कॉमन लॉ में करनी है, शादी में करनी है, कैसे उनको करना है। That's good. Thank you so much, Megha ji, for being with us. Thank you so much for having me. Thank you everyone. Have a good day. ठीक है।